بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، میں ربیہ ناصر آپ کو اپنے چینل پر تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ سمندر کے بیچوں بیچ ایک بے آباد جزیرہ واقع تھا۔ اس جزیرے پر ایک بہت بڑا قید خانہ تھا جہاں سینکڑوں نوجوان قید تھے۔ یہ سب نوجوان ملکہ نیکان کے قیدی تھے۔ ملکہ نے انہیں اس لیے قید کیا ہوا تھا کیونکہ وہ ملکہ کی طرف سے سپرد کردہ مہمات پوری کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ ملکہ نیکان ریاست نامان کی حکمران تھی۔ اس کے خاوند بادشاہ قاسم وفات پا گئے تھے۔ بادشاہ قاسم کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام شہزادی مسکان تھا۔ ملکہ نیکان شہزادی مسکان کی سوتیلی ماں تھی۔ اس کی سگی اولاد نہیں تھی۔ اب شاہی خاندان میں سے صرف شہزادی مسکان ہی اس سلطنت کے تخت و تاج کی مالک تھی، جس کے لیے اس کی شادی ہونا لازمی تھی۔ لیکن ملکہ نیکان اپنی بادشاہت کو طول دینے کی اندھی لالچ میں مبتلا تھی، اس لیے وہ شہزادی کی شادی نہیں کرانا چاہتی تھی۔ اس نے شہزادی مسکان سے شادی کے لیے ایک اعلان کرا رکھا تھا کہ جو شخص فلاں فلاں شرائط کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو اسے شہزادی کا ہاتھ دے دیا جائے گا، اور اگر وہ شرائط مکمل کرنے میں ناکام رہا تو اسے جزیرے کے قید خانے میں عمر بھر کے لیے قید رہنا ہوگا۔ یہ اعلان سنتے ہی گرد و پیش سے سینکڑوں نوجوان شہزادی سے شادی کرنے کے لیے سامنے آ گئے، لیکن ملکہ کی پیش کردہ شرائط ایسی ہوتی تھیں جن کا پورا ہونا بے حد مشکل تھا۔ مثلاً ملکہ کہتی کہ دنیا میں نایاب قرار پائے جانے والے فلاں پرندے کو لے آؤ، صدیوں پہلے کے فلاں بادشاہ کے ہار کا موتی لاؤ، محدود وقت میں بھاری صندوقوں کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا آؤ، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے ایسی ناممکن شرائط کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ یوں شہزادی کی شادی میں تاخیر ہوتی جا رہی تھی، جبکہ ملکہ نیکان کی سلطنت کے دن بڑھتے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر ارد گرد کے ملکوں میں بھی پھیلتی جا رہی تھی۔ ایک دن یہ خبر شہزادہ محفوظ تک بھی پہنچ گئی۔ وہ ریاست بہارستان کے گورنر کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابو جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والد نے جواب دیا، کیا تم بھی باقی لوگوں کی طرح قید خانے میں سڑنا چاہتے ہو؟ میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ یہ جواب سن کر محفوظ رنجیدہ ہو گیا۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی اس کا ملال ختم نہ ہوا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس کے باپ نے کہا، لگتا ہے تم دل میں ٹھان چکے ہو، اس لیے تمہیں روکنا درست نہیں۔ جاؤ بیٹے، اللہ کی امان میں، لیکن تدبیر کے ساتھ کام کرنا، اور یہ میرا خاص گھوڑا بھی لے جاؤ۔ محفوظ خوش ہو گیا اور کہا، مجھے اپنے پیارے ابو جان سے یہی امید تھی۔ مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں، میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی، والد نے کہا، اور محفوظ چل پڑا۔ اس کا گھوڑا منزلیں مارتا دوڑا جا رہا تھا کہ اچانک ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ وہ اس وقت ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور چیخ کی سمت کا اندازہ کر کے گھوڑا اسی طرف ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چیخو پکار کرنے والی عورت تک پہنچ چکا تھا۔ کیا بات ہے اے خاتون، تم کیوں رو رہی ہو؟ محفوظ نے پوچھا۔ ارے یہ تو مکمل سفید گھوڑا ہے، عورت نے محفوظ کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے حیرت سے کہا۔ اس کا کیا مطلب؟ محفوظ نے پوچھا۔ اے بہادر جوان، میرے بیٹے کو کچھ دیوزادوں نے قید کر لیا ہے، اور ان کی شرط یہ ہے کہ میں ایک ایسا گھوڑا لاؤں جو مکمل سفید ہو۔ اوہ! محفوظ چونکا۔ میں ان دیوزادوں سے لڑ کر تمہارا بیٹا لے آتا ہوں۔ مجھے بتاؤ وہ کدھر ہیں؟ محفوظ نے پوچھا۔ نہیں، مجھے وہاں اکیلے جانا ہوگا، تم گھوڑا دے دو تو مہربانی ہوگی، عورت نے اصرار کیا۔ اب محفوظ مجبور ہو گیا اور پھر اس نے اپنا گھوڑا اس کے حوالے کر دیا۔ عورت مسکرائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے ایڑی لگا دی۔ جیسے ہی گھوڑا وہاں سے آگے بڑھا، اسے نور کے ہالے نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ محفوظ پل کے جھپکانا تک بھول گیا اور وہ گھوڑے کو دیکھتا رہ گیا۔ اسی وقت اس عورت نے گھوڑا روکا اور محفوظ کی طرف مڑی اور کہا، اے جوان، واپس گھر نہ جانا، تمہارا پیدل سفر کرنا ضروری ہے، اس لیے یہ گھوڑا میں لے کر جا رہی ہوں۔ راستے میں 5 عجائب تمہارے منتظر ہیں۔ محفوظ حیران رہ گیا، خدا جانے وہ عورت جن تھی یا فرشتہ۔ تاہم اب محفوظ گھوڑے سے محروم ہو چکا تھا، کیونکہ اب وہ عورت بہت دور جا چکی تھی۔ چنانچہ محفوظ پیدل مارچ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب چیز دیکھی اور وہ زور سے چونکا۔ محفوظ جس راستے سے گزر رہا تھا وہ راستہ بالکل صاف تھا، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اب اس راستے میں ایک چھوٹا سا ٹیلا نظر آ رہا تھا۔ مزید عجیب بات یہ تھی کہ وہ ٹیلا آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، اس کا رنگ بھی عجیب تھا۔ محفوظ آگے بڑھا اور اس ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ششدر رہ گیا۔ وہ کسی ٹیلے پر نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک بہت ہی
लहीम शहीम मोटे इंसान के पेट पर चढ़ा हुआ था, जो नींद में था और नींद में सांस लेने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हिल भी रहा था। उसका चेहरा बहुत ही हैबतनाक था। महफूज आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा कि अचानक उसका पांव फिसला और वो नीचे लुढ़कता चला गया। साथ ही उस मोटे आदमी की आंख खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा और तड़प कर खड़ा हो गया। महफूज उसकी फुर्ती पर हैरान रह गया। उसने तलवार निकाल ली। तलवार की झंकार सुनकर वह फौरन उसकी तरफ मुड़ा और उसको सामने देखकर हंस पड़ा। साथ ही उसने दाएं बाएं के 2 पेड़ जड़ समेत उखाड़ कर उठा लिए। अब वो उन पेड़ों को महफूज पर फेंक कर उसे कुचल सकता था। ये देखकर महफूज ने तलवार फेंक दी और कहा, काश कि हम दोस्त बन सकते। उसकी बात सुनकर उस मोटे आदमी ने दरख्त दूर फेंक दिए और कहा, अगर तुम मुझे खाना खिलाओ तो हम दोस्त बन सकते हैं। वाह, ये हुई ना बात। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? महफूज चहका, मेरा नाम बदीन है। उसके लब हिले। शहजादा महफूज ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उसने तीर कमान संभाल लिया और शिकार तलाश करने लगा। वो शिकार करता गया और देव हैकल आदमी उन्हें खाता गया। आखिर शाम हो गई और महफूज भी थक गया। तब वो आदमी बोला, बस इतना काफी है। अब मैं 6 माह सुकून से गुजार लूंगा। 6 माह? मतलब तुम अब 6 माह कुछ नहीं खाओगे? महफूज ने शदीद हैरत से पूछा। जी हाँ, वो हंसा। महफूज ने शिकार करदा जानवरों के सर गिने तो वो अब तक 35 हिरन, 13 बकरियां और 19 खरगोश खा चुका था। ये देखकर महफूज ने गहरी सांस ली। वो रात उन्होंने आराम में गुजार दी। अगले दिन उनका सफर शुरू हो गया। चलते चलते उनका गुजर एक वादी से हुआ। अचानक वहां सख्त तेज हवा चलने लगी। हालांकि उफक बिल्कुल साफ था और आसमान पर आंधी तूफान के आसार बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अब शदीद हवा चलने लगी थी। हवा के झक्कड़ इस कदर तेज थे कि महफूज के कदम उखड़ने लगे। तब देव हैकल आदमी ने महफूज को उठा लिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे एक अजीब नजारा उनका मुंतजिर था। पहाड़ के दामन में एक आटा पीसने वाली चक्की नस्ब थी और तेज हवा से उसके पर हरकत कर रहे थे और यूं ये कारखाना चल रहा था। अजीब बात यह थी कि यह हवा एक बहुत लंबी नाक वाले लंबे तड़ंगे आदमी की नाक से निकल रही थी। उसने एक नथने पे अपनी उंगली रखी हुई थी और उसके दूसरे नथने से तेज हवा निकलकर चक्की के परों को चला रही थी। महफूज का शिद्दत हैरत से बुरा हाल था। उसी लम्हे बदीन ने उसे आवाज दी तो वो चौंक पड़ा और नाक से हवा निकालना बंद कर दी। क्या कर रहे हो दोस्त? बदीन ने पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। फिर कहा, शुक्र है तुमने मुझे दोस्त कहा, वरना अभी हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी होती। शुक्रिया दोस्त। बदीन हंसा। कौन हो तुम? लंबा आदमी उनकी तरफ बढ़ा। मैं शहजादा महफूज हूँ। मैं एक मुहिम पे जा रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? महफूज ने ऊंची आवाज में कहा, मेरा नाम अनफी है और मैं इस चक्की का खादिम हूँ। उसने जवाब दिया, आप चक्की क्यों चलाते हैं? क्या ये आपका अपना कारखाना है? महफूज ने पूछा तो वो उदास अंदाज में मुस्कुराया। फिर बोला, नहीं शहजादे नहीं, ये मेरे मालिक की है। वो बहुत कंजूस है। मैं तो पेट भर कर खाना भी नहीं खा सकता। अनफी ने बुरा सा मुंह बनाया। ओह, बदीन के मुंह से निकला, तुम हमारे साथ चलो, हम जा रहे हैं, वहां बहुत ज्यादा खाना होगा। महफूज ने कहा। क्या वाकई? वो चौंका। हाँ बिल्कुल, उसने मुझे भी बहुत खाना खिलाया है, बदीन ने कहा। तो वो लंबा तड़ंगा आदमी अनफी भी उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में एक जगह अचानक वो रुका और दाएं बाएं गौर से देखने लगा। फिर उसने अपने कान जमीन से लगा दिए जैसे कुछ सुन रहा हो। थोड़ी देर बाद वो उठा और कहा, दोस्तों, मेरी नाक की तरह मेरे कान भी अजीब ताकत के मालिक हैं। मैं कई मील दूर की आवाजें सुन सकता हूँ और अभी मुझे ये मालूम हुआ है कि इस रास्ते पर 6 मील दूर एक गर्म दलदल है जिसका पानी खौल रहा है। मैं उसके खौलने की आवाज सुन रहा हूँ, इसलिए हमें रास्ता बदल लेना चाहिए। ओह, तुम वाकई बाकमाल दोस्त हो। महफूज ने उसकी तहसीन की और फिर उन्होंने रास्ता तब्दील कर लिया। अभी वो चंद कदम ही चले होंगे कि उनके सामने एक कमजोर सा शख्स आ गया जिसने अपनी दोनों आंखें लकड़ी से छुपाई हुई थीं। ए जवान, क्या तुम्हारी आंखों में तकलीफ है? महफूज ने पूछा, मगर वो चुप रहा। मुझे लगता है कि ये बेचारा नाबीना है, बदीन ने अफसोस से कहा। वो शख्स हंसा और लकड़ी का टुकड़ा आंखों से हटा दिया। तब उन्होंने उसकी उक्काबी चमकदार आंखें देखीं। उधर वो जवान कहने लगा, मेरा नाम हाद है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मेरे सामने कोई रुकावट नहीं आ सकती। मैं तो दीवारों के आर पार भी देख सकता हूँ।
मैं सैकड़ों मील दूर भी साफ देख सकता हूँ। मैं जमीन के अंदर भी देख सकता हूँ। अलबत्ता जब मैंने करीब की चीजें देखनी हो तो मैं ये टुकड़ा आंखों पर रख लेता हूँ। ओह, फिर तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तुम मेरी मुहिम में मेरी मदद करोगे, महफूज ने कहा। जरूर, मैंने तुम्हारी बहादुरी और अक्लमंदी के बहुत किस्से सुन रखे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो आदमी बोला तो बदीन और अनफी शहजादे को देखने लगे, जबकि शहजादे ने सीने पे हाथ रखकर उसका शुक्रिया अदा किया। अब महफूज अपने 3 बाकमाल दोस्तों के साथ मंजिल की तरफ रवां दवां हो गया। वो सफर भी करते और आराम भी। यूं वो मंजिल के करीब होते जा रहे थे। एक दिन वो सफर में थे कि अचानक उन्होंने रास्ते के साथ अजीब सी चीज देखी। महफूज ने करीब जाकर देखा और कहा, ये 2 बड़े दरख्तों के तने हैं, शायद हवा से गिर गए हैं। लेकिन शहजादे, इन तनों पे ये अजीब बाल कहाँ से आ गए? बदीन ने कहा। ओह, तेज निगाह शख्स हाथ की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? महफूज ने पूछा। ये दरख्तों के तने नहीं हैं, बल्कि एक सोए हुए शख्स के बाजू हैं। उसने अपने बाजू पीछे किए हुए हैं और अब हम उसके सर की तरफ जा रहे हैं। क्या? महफूज चिल्लाया। जी हाँ, मैं उसे देख चुका हूँ। तेज निगाह आदमी हंसा और फिर वो सब उस तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वो उसके पास पहुंच गए। उसका कद और वजूद बहुत बड़ा था। तुम कौन हो दोस्त? महफूज ने पूछा। मैं कामिल हूँ। मैं अपने बाजू सुकेड़ भी सकता हूँ और लंबे भी कर सकता हूँ। उसके अलावा मेरी असल ताकत मेरी टांगे हैं। मैं एक कदम में कई मील का सफर तय कर सकता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महफूज ने पूछा। मैं एक बादशाह का गुलाम था। उसने एक बार मुझे एक मुहिम पर भेजा था। मैंने वो मुहिम चंद मिनटों में मुकम्मल कर ली और वापसी पर मैं सो गया। मेरी कमजोरी यह है कि मुझे नींद बहुत आती है। मेरी इस गलती पर उसने मुझे वहां से निकाल दिया। कामिल बोला, ठीक है, आज से तुम मेरे दोस्त हो, मेरे साथ चलो। महफूज ने कहा तो उसने हामी भर ली। जल्द ही ये काफिला आगे बढ़ गया। महफूज और उसके साथी जिस जगह से गुजर रहे थे वहां गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अचानक वो चौंक उठे। उन्हें माहौल का दर्जे हरारत बदलता महसूस हुआ, जैसे अचानक सर्दी आ गई हो। ये सिर्फ चंद लम्हों के लिए हुआ था, फिर दोबारा वैसे ही गर्मी हो गई थी। उसी वक्त उन्हें एक दरख्त के नीचे एक आदमी सुकड़ा सिमटा हुआ नजर आया। उसने भारी भारी कपड़े लपेटे हुए थे। अरे मियाँ, खैर तो है? हमें गर्मी जलाए दे रही है और तुम्हें सर्दी लगी हुई है क्या? महफूज ने पूछा। मैं तुमसे मुख्तलिफ हूँ शहजादे, ये देखो। ये कहकर उसने अपनी चादर को हटाया। फौरन ही माहौल में खनकी बढ़ने लगी। ओह, ये क्या? महफूज ने पूछा। मैं बारूद हूँ, मेरे अंदर सर्दी भरी हुई है। वो बोला, ठीक है, तुम चाहो तो हमारे साथ चलो, महफूज ने कहा, और वो भी साथ चल पड़ा। आखिर एक लंबा सफर तय करके वो शहजादी मुस्कान की रियासत नामान जा पहुंचे। शहजादे ने अपने दोस्तों को बाहर एक जगह रुकने को कहा और खुद आगे बढ़ गया। जल्द ही वो महल में दाखिल हो रहा था। तो तुम शहजादी से शादी करना चाहते हो? मलिका निकान ने महफूज को तंजिया अंदाज में देखा। जी हाँ मलिका आलिया, ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुहिम्मात हैं। अगर वो पूरी कर दो तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है मलिका, आप बताइए। पहली मुहिम ये है कि यहाँ से 100 मील के फासले पर नीले जंगल में एक कुआं है जो बहुत गहरा है। चंद साल पहले उसमें मेरी अंगूठी गिरी थी। आज शाम से पहले वो ले आओ। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें जजीरे पे कैद कर दिया जाएगा। ठीक है मलिका आलिया, महफूज ने कहा और शहर से बाहर निकल आया। अब वो सीधा अपने दोस्तों के पास जा पहुंचा और सारी बात बताई। अभी उनका बाहिमी मशवरा मुकम्मल नहीं हुआ था कि कामिल उठा और कहा, मैं अभी लाता हूँ। ये कहकर वो भाग खड़ा हुआ। अरे अरे रुको, महफूज चिल्लाया, मगर वो जा चुका था। सारे दोस्त उसकी जल्दबाजी पे तिलमिलाकर रह गए। कुछ देर बाद वो आंधी तूफान की तरह लौटा तो उसका मुंह लटका हुआ था। क्या हुआ? दोस्तों ने पूछा। मुझे अंगूठी नहीं मिली, कामिल ने मुंह बनाया। भले आदमी, तुम रुके ही नहीं, पहले हम सोच तो लेते। महफूज ने उसे समझाया। उसके बाद महफूज ने तेज निगाह वाले आदमी को कहा कि तुम अच्छी तरह अंगूठी को तलाश करो। उसने वहीं बैठे बैठे आंखों से लकड़ी हटाई। उसकी निगाहों से पर्दे हटते चले गए और फिर वो अंगूठी देखने लगा। फिर वो बोला, कामिल अब तुम जाओ और कुएं में हाथ डालकर गोल डिब्बी तलाश करो। वो डिब्बी पत्थरों में दबी हुई है, वो अंगूठी उसी में है। ये सुनकर कामिल हवा हो गया। कामिल के जाने के बाद वो सब बातों में लग गए।
बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास भी ना हुआ और शाम हो गई। अचानक महफूज की निगाह सूरज पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा। अरे जरा कामिल को देखो, वो कहाँ रह गया है? महफूज ने परेशानी के आलम में हाथ से कहा। तेज निगाह आदमी ने देखा तो कहा, शहजादे कामिल इस वक्त कुएं के करीब ही एक दरख्त के नीचे सो रहा है और अंगूठी उसकी जेब में है। ओह! महफूज ने बेइख्तियार सर पकड़ लिया और फिर उसने कहा, उसे फौरी जगाने की जरूरत है। अब लंबी नाक वाला अनफी उठा और अपनी नाक का रुख उधर करके नाक से तेज हवा निकाली। ये हवा तेज आंधी की सूरत में कुएं की तरफ चलने लगी और दरख्त हिलने लगे। दरख्तों के हिलने से उनके फल भी गिर रहे थे। जिस दरख्त के नीचे कामिल सो रहा था उसके फल भी गिरे और सीधे कामिल के सर पर लगे। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। तब उसे याद आया कि वो तो अंगूठी लेने आया था। अब वो वापस रवाना हुआ। थोड़ी देर बाद वो महफूज के पास अंगूठी लिए खड़ा था। उस वक्त सूरज गुरूब होने ही वाला था और अब महफूज के पास रुकने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। लिहाजा महफूज महल की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर वो मलिका के पास जा पहुंचा। मलिका उसे देखकर हैरान रह गई। ये लीजिए मलिका आलिया। महफूज ने अंगूठी मलिका को पेश कर दी। अंगूठी देखकर मलिका का रंग उड़ गया। उसने अलट पलट कर देखा तो ये उसकी ही अंगूठी थी। ठीक है शहजादे, अगली मुहिम कल सुबह, मलिका ने चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। महफूज भी मुस्कुरा दिया। अगले दिन महफूज मलिका के खिदमत में हाजिर हुआ तो मलिका बोली, तुमने कल बहुत बड़ी मुहिम सर की है, लिहाजा तुम्हें भूख तो लगी होगी। मेरे महल के साथ एक फार्म है, वहाँ 30 गायें मौजूद हैं। तुमने आज शाम होने से पहले वो सब खानी हैं। ये तुम्हारी दूसरी मुहिम है। महफूज ने ये बात सुनी, फिर मुस्कुरा कर गोया हुआ, मलिका आलिया, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने साथ अपने खादिम को भी शरीक कर लूँ जो मेरा खाना बनाता है। मलिका सोचने लगी, फिर उसने कहा, ज़रूर, तुम्हें इजाज़त है। अब महफूज ने लंबी नाक वाले अनफी को बुलाया और उसे तमाम जानवर खाने की दावत दी। उसने मर भूखों की तरह खाना शुरू कर दिया। शाम तक महल के तमाम जानवर खाए जा चुके थे। मलिका ने शाम को महल का चक्कर लगाया तो उसने देखा कि तमाम जानवर गायब हैं। उसने महल के खादिमों से पूछा तो उन्होंने बताया वो सब जानवर तो शहजादा महफूज और उसका खादिम खा चुके हैं। ये सुनकर मलिका गिरते गिरते बची। शाम को उसने शहजादे को कल के नाश्ते की दावत दी, जिसे शहजादे ने कबूल कर लिया। अगले रोज उन्होंने बेतकल्लुफ नाश्ता किया। उसके बाद मलिका ने कहा, तीसरी मुहिम यह है कि तुम कल सारा दिन शहजादी की निगहबानी करोगे। अगर शाम तक शहजादी को कुछ हुआ या वो गायब हुई तो फिर तुम्हारा ठिकाना कैद खाना होगा। महफूज ने ये मुहिम भी कबूल कर ली। अब मलिका ने ये चाल चली कि उसने शहजादे के मशरूब में नशे आवर दवा मिला दी। खाना खाने के बाद शहजादा और शहजादी कमरे में आ गए। महफूज की आंखें नशा आवर दवा की बदौलत बंद होने लगी और जल्द ही वो सो गया। मलिका निकान ने अपने खास बंदों के जरिए शहजादी को अगवा कर लिया और उसे समंदर में एक कश्ती पे बांधकर छोड़ दिया। शाम के वक्त शहजादा गहरी नींद से जागा और शहजादी को ना पाकर हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके बाद वो भागता हुआ अपने साथियों के पास गया और कहा, हाथ फौरन शहजादी को तलाश करो। जो हुक्म शहजादे। उसने फौरन ही इर्द गिर्द देखा तो उसे शहजादी समंदर में एक कश्ती पर बंधी नजर आई। अब शहजादा अपने साथियों के हमरा गया और शहजादी को वापस ले आया और फिर वो दोनों उसी कमरे में बैठ गए। सूरज डूबने के बाद मलिका अपनी कनीजों के हमरा खरामा खरामा चलती हुई कमरे में आई। उसका ख्याल था कि शहजादा सो रहा होगा और शहजादी गायब होगी, लेकिन शहजादी और शहजादा तो हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये देखकर मलिका के होश उड़ गए, लेकिन वो बहुत शातिर थी। चुनाचे उसने खुद को संभाला और कहा, शाबाश शहजादे, तुमने तीनों मुहिमात कामयाबी से मुकम्मल कर ली हैं। अब कल शादी की तकरीब मुनक्किद की जाएगी, लिहाजा तुम अपने तमाम साथियों समेत हमारे मेहमान खाने में आ जाओ। महफूज बहुत खुश हुआ और अपने साथियों समेत मेहमान खाने में आ गया। मेहमान खाने का फर्श और दीवारें पीतल की थीं। यूं लगता था जैसे पीतल का बहुत बड़ा डब्बा हो। दरअसल मलिका निकान शहजादे को जानबूझकर इस कमरे में लाई थी और अब वो अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने जा रही थी। उसने अपने खादिमों को बुलाया और कहा, पीतल वाले कमरे के नीचे आग जलाओ। ये आग सुबह तक भड़कती रहनी चाहिए ताकि ये मनहूस कोयला हो जाए। खादिमों ने ऐसे ही किया। जैसे ही आग के अलाव जले, कमरे में गर्मी बढ़ने लगी। शहजादा बूढ़ी मलिका की चाल समझ गया था। अब उसने बारत को कहा कि तुम अपनी चादर उतार दो ताकि कमरे में ठंडक पैदा हो और दर्जे हरारत मुअतदिल हो जाए। उसने शहजादे की हिदायत के मुताबिक ही किया।
और यूं वो आग से बच गए। अगली सुबह मलिका ने देखा कि वो सब सही सलामत हैं, तो वो आग बगूला हो गई। अब वो खुलकर सामने आ गई और शहजादी को अगवा करके एक किले में छुपा लिया और शहजादे के खिलाफ जंग शुरू कर दी। शहजादे ने अपने खादिमों के साथ मिलकर मलिका की खास फौज के छक्के छुड़ा दिए और जल्द ही मलिका गिरफ्तार हो गई। यूं शहजादा महफूज ने शहजादी को बाजियाब करा लिया। अगले दिन मलिका निकान वीरान जजीरे पर कैद थी, जबकि शहजादी और शहजादा तख्त पे बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनका तख्त शहजादे के साथियों ने उठाया हुआ था और वो सब खूब लुत्फानंदोज हो रहे थे।